So guys, we are already discussed about few types of malwares in previous class, जिसमें हमने 2 क्लासेस करी हैं अभी तक, है ना, malwares related। और इसमें हमने अलग अलग टाइप के malwares लाइक डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, क्रिप्टो करेंसी malware क्या है, आपका नॉर्मल वायरस किस टाइप का malware होता है, बॉम्ब्स कैसे होते हैं, की लॉगर्स कैसे होते हैं, एंड ransomwares हमने ये अभी तक डिस्कस किए थे। नाउ हम आगे के malwares डिस्कस करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ टाइप ऑफ स्पाईवेयर्स। तो आज हम स्पाईवेयर टाइप ऑफ मेलवेयर्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि उसके अंदर से किस तरीके का डेटा आप निकाल सकते हो, किस तरीके से एनालिसिस करके हम उसके अंदर से फाइंड आउट करें। प्लस स्पाईवेयर में टाइप ऑफ मेलवेयर हम यूज करेंगे, दैट इज द नेम ऑफ ट्रोजन, जिसके हेल्प से हम करेंगे क्या, सबसे पहले किसी एक सिस्टम का एक्सेस लेंगे और एक्सेस लेने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं उन चीजों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन नाउ। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको समझना होगा कि स्पाईवेयर टाइप ऑफ मेलवेयर्स होते किस टाइप के हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिप्रेजेंट अ टाइप ऑफ वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू, सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि किस तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। Spyware is software that is designed to gather data from your device. It can communicate your personal and confidential information to a user who has malicious intent. As long as you're using a device connected to the internet, you are in danger of spyware infestation. Hackers can get spyware onto your device in many ways, but these 4 are the most common. Firstly, spyware can penetrate your device in the form of a Trojan, which is a type of malware that is disguised as legitimate software. Hackers use the Trojan in a sneaky process called social engineering, which is a method into tricking users to load and execute the virus. Secondly, spyware can infect your device when you interact with legitimate programs. This type of spyware infection can happen on 3 types of programs: adware, pornware, and riskware. Specifically, hackers can exploit user interactions with advertisements, adult material content, and various third-party program downloads to gain access to devices. Thirdly, hackers can exploit and compromise tracking cookies, which is a common practice many legitimate websites employ. Finally, hackers can get spyware onto your device through system monitors that are designed to monitor computer activity and performance. Once spyware gets onto your device, it can cause very nasty problems. It can communicate your personal and confidential information to the attacker, with information to valuable things like your email activity, passwords, social media accounts, credit card information, and purchase history. Your online identity is at high risk of being stolen and imitated. The spyware can also corrupt and compromise your device's performance. It can soak up your device's resources, making it run slowly, tag in between applications, crash, and overheat. Furthermore, the spyware can manipulate search results and serve you potentially harmful and fraudulent websites, which may trick you into clicking into more harm and dangerous viruses. A good first layer of protection is prevention through safe internet browsing practice, like not clicking on unexpected links in emails or entering suspicious websites. However, not downloading a program and never clicking on an email attachment is not always an option. That's where a trusted internet security solution will give you peace of mind. It will provide early detection and proactive protection. Additionally, for those users already infected with spyware viruses, there are spyware removal tools that will assist in identifying and removing them. सर में आया गाइस, स्पाईवेयर किस तरीके से काम करते हैं? Yes, sir. Now let's discuss about a type of virus, that is a Trojan। जो स्पाईवेयर है आपका किस तरीके से होता है? It's a type of malware which it seems to be a beneficial thing for the person, but it is basically harming the person, actually to harming the person at the back end, at the background। किसी भी यूजर को हम सेंड करते हैं, यूजर को लगता है दिस टाइप ऑफ malware इज बेसिकली अ प्रोटेक्टेड, यानी कि यूजफुल थिंग है हमारे लिए, बट एक्चुअल में वो क्या करती है, बैकग्राउंड पे आपके एक एक्सेस ले लेती है, जिसके थ्रू आपके सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, आपके ट्रोजन्स के थ्रू। It basically provide a backdoor access to any system without concern the system owner। ये आपके सिस्टम का फुल एक्सेस क्रिएट करते हैं और सिस्टम ओनर्स की, यानी सिस्टम जो आपका बेसिकली जो उसका ओनर है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी परमिशन के बिना। ठीक है,
सो ट्रोजन्स आपको जब अगर याद हो तो हमने जब पहले अपनी फर्स्ट वीडियो देखी थी, फर्स्ट अपना जब लेक्चर लिया था, तो उसमें मैंने आपको वीडियोस दिखाई थी जिसमें आपको टाइप ऑफ मेलवेयर्स भी था, जिसमें क्या करते हैं लाइक सिंपल सा मेलवेयर का एक आइडिया ऐप भेजा गया था, है ना। आइडिया ऐप आप फोन में इंस्टॉल करते हो, उसके बाद आपको पूरा फोन क्या होता है कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ मेलवेयर। सो अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज हो सकती है मेलवेयर्स के थ्रू। So Trojan can be differentiated on the basis of connections. यहाँ पे दो तरीके के हैं, that is a forward based connection Trojan and the reverse connection based Trojans. दो तरीके connection base पे हम Trojans को use करते हैं। Forward base में क्या होता है, when the attacker have the target IP address, then he can directly attack on the system. अगर उसके पास victim का target के पास अटैकर के पास अगर टारगेट का या विक्टिम का आईपी एड्रेस है, तो वो सिस्टम पे डायरेक्टली क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। बट इसके लिए दो चीजें सबसे मेन होती हैं। सबसे पहला जो ड्रॉबैक हमारे लिए आता है वो ये है, अगर टारगेट जो है वो कीप मूविंग है, यानी हमारा जो विक्टिम है वो मूव कर रहा है, देन द आईपी एड्रेस ऑफ द टारगेट विल नॉट बी चेंजिंग। तो उस केस में क्या होगा, अगर वो मूव है तो द आईपी एड्रेस ऑफ द टारगेट विल कीप ऑन चेंजिंग, तो उसका आईपी एड्रेस जो है वो हर बार चेंज हो जाएगा। लाइक अभी उसने डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट कर रखा है एंड आफ्टर इट वो क्या करता है, डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता है। तो उस सिनेरियो में होगा क्या कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा और अटैकर को विक्टिम का आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर it will be very hard to attacker to get the IP address every time when he will change the location। अच्छा, एक चीज देखो इसमें बहुत मेन है कि अगर आप एक अटैकर हो, अटैकर की तरह सोचोगे तो हर टाइम आपको विक्टिम का आईपी एड्रेस मिले, दैट नॉट पॉसिबल। आपको हर टाइम नहीं मिल सकता। तो अगर आपको हर टाइम नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उसका कनेक्शन नहीं ले पाओगे और उस कंडीशन में आप उसे हैक नहीं कर पाओगे, राइट। सो इसमें होता क्या है कि हम विक्टिम को सिंक्रोनाइजेशन पैकेट्स यानी कि कनेक्शन पैकेट्स क्या करते हैं, सेंड करते हैं। रिवर्स कनेक्शन में क्या होता है, this is a current type of Trojan that is implemented nowadays in which an attacker uses his or her IP address to launch an attack। रिवर्स कनेक्शन में क्या है, हम क्या करते हैं कि हम अपना आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और हम अपने आईपी एड्रेस डाल के भेजते हैं ताकि हमें विक्टिम की तरफ से कनेक्शन यानी कि सिंक्रोनाइजेशन पैकेट हमारे पास आए। तो अगर हमारे पास आएंगे तो आई एम द पर्सन हु जस्ट बेसिकली गोइंग टू रिप्लाई ऑफ देम। तो उस केस में क्या है कि वो जब भी इंटरनेट से कनेक्ट होगा, भले वो कोई भी आईपी एड्रेस यूज करे, वो हमें रिक्वेस्ट पैकेट भेजता रहेगा। It's not required to know the IP address of the victim. The Trojan developed by the hacker is sent to the victim and further when executed by victims, attackers get the access। तो इसमें क्या मिलता है हमें, tools जो हम use करते हैं, we can use the different types of Trojan tools। You can say that is a third party tools and known as a remote administrative tool, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, रैट्स बोलते हैं। तो इन रैट्स को आप अलग अलग तरीके के रैट होते हैं हमारे पास, जैसे कि if I'm talking about like dark comet, NJRAT, nanocore, these etc, और भी आपके पास हो सकते हैं। these are all the name of the rat। तो हम जो इसमें यूज करेंगे अभी वो हम कौन सा करेंगे, डार्क कॉमेट। ठीक है, तो हम डार्क कॉमेट देखेंगे किस तरीके से यूज किया जाता है। फिर the rat is created about the tool where from somewhere else could be implemented on the internet and the intranet but the procedure varies। आप रैट को जो क्रिएट करते हो उसमें दो तरीके से क्रिएट करते हैं, एक तो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू क्रिएट होता है, एक इंट्रानेट कनेक्शन के थ्रू क्रिएट होता है। सो इंटरनेट क्या है, when the attacker and victim are on the same network, this is called the internet procedure। and internet procedure क्या है, when both are on the different network, जिसमें हम DDNS या फिर आपका पोर्ट फॉरवर्डिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, सो मैं जो आपको यहाँ पे अभी विजुअल हम करेंगे वो कौन सा करेंगे, हम इंटरनेट कनेक्शन मेथड का, इंटरनेट कनेक्शन मेथड का यूज करेंगे। एंड इंटरनेट कनेक्शन मेथड पे आप कैसे कर सकते हो, आई विल टेल यू एंड यू जस्ट गोइंग टू परफॉर्म दैट, राइट। यस सर। तो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माय मशीन, तो आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से करना है। नाउ लुक एट हियर गाइस, सो मेरे पास में मशीन्स हैं, ठीक है, दिस इज माय अटैकर मशीन एंड द मशीन दैट इज माय विक्टिम मशीन। ओके, सो आपको करना क्या है, सबसे पहले अटैकर मशीन में आपको एक फाइल दूंगा मैं, दैट इज अ डार्क कॉमेट फाइल। आपको उसके ऊपर जस्ट क्लिक करना है
एंड जस्ट सिंपली आप इसके फोल्डर में जाके इसको रन कराओगे। अच्छा, इसको रन कराने के लिए आपके सिस्टम में पहले JDK इंस्टॉल होना चाहिए, एटलीस्ट वर्जन 8। अगर आपके पास जावा इंस्टॉल्ड है तभी आप इसको प्रॉपर तरीके से सही से रन करा पाओगे। एंड द सेकंड थिंग, जिस सिस्टम के में आप इसको यूज कर रहे हो, यानी कि अटैकर सिस्टम जो, उसका आपका एंटीवायरस ऑफ होना चाहिए। अगर एंटीवायरस ऑफ नहीं है तो ये क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट वाली फाइल को रिमूव कर देगा। ठीक है, तो मस्ट रिमेंबर दैट कि जिस सिस्टम में आप इसको चलाओ उस सिस्टम का एंटीवायरस इससे पहले क्या कर दो, ऑफ कर दो। ठीक है, एंड JDK को इंस्टॉल कर लो। नाउ जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन एंड इट विल गोइंग टू रन। उसके बाद आपको करना क्या है, जस्ट नोट डाउन द स्टेप्स, अदरवाइज आप भूल जाओगे। ठीक है, सो आपको स्टेप्स में लिख लो गाइस। सबसे पहले आपको जाना है डॉक्यूमेंट के ऊपर एंड जस्ट क्लिक टू द सर्वर मॉड्यूल एंड सिलेक्ट द फुल एडिटर मोड। आपका डॉक्यूमेंट में जाना है, सर्वर मॉड्यूल पे जाना है, देन फुल एडिटर मोड पे जाना है। ठीक है, यस सर। क्लिक करोगे, उसके बाद आपसे कुछ सेटिंग्स कह रहा है। ठीक है, तो एक एक करके सेटिंग समझ लो है क्या और क्या पूछ रहा है। सबसे पहले आपसे कह रहा है सिक्योरिटी पासवर्ड। अब एक चीज बताओ, कई बार हम फाइल्स को इंस्टॉल करते हैं तो हमसे एक पासवर्ड नहीं मांगता है डाउनलोड करते टाइम पे और इंस्टॉल करते टाइम पे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब ये इंस्टॉल होगा तो उस टाइम पे आपसे एक पासवर्ड मांगे। आप खुद सोचो, एक तो आप बना रहे हो रैट, ठीक है, ऊपर से आप उसके ऊपर लगा देते हो पासवर्ड। तो पासवर्ड लगाने में होगा क्या कि अगर 50 यूजर्स हैं तो 25 तो इसीलिए छोड़ देंगे क्योंकि उस पर क्या लगा हुआ है, पासवर्ड लगा हुआ है, राइट। बिकॉज पीपल्स आर डजंट नो, या पता भी होगा तो बहुत से लोग आधे लोग डालेंगे नहीं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पासवर्ड को सेट नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसे अनचेक करके रखा है। दूसरा, म्यूटेक्स प्रोसेस किस लिए होती है, आपके स्टेप को एक परसिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो हम यहाँ पे म्यूटेक्स को रेंडमाइज करके एक क्या कर रहे हैं, कनेक्शन की को जनरेट कर रहे हैं। सर्वर आईडी 16 रहेगी, प्रोफाइल सेटिंग 1 यही छोड़ दो। नीचे कुछ ऑप्शन है जो आपसे कह रहा है एक्टिव फायरवॉल, ठीक है, बाईपास कह रहा है कि आप एक्टिवेट कर सकते हो फायरवॉल बाईपास, लेकिन कब कब मत करना, डोंट यूज। अगर आप इसको एक्टिवेट करते हो तो डोंट यूज दिस ऑप्शन, मत करो इस ऑप्शन को यूज इफ यू आर प्लानिंग टू क्रिएट अ क्रिप्ट स्टब। अगर आप स्टब को क्रिएट करने वाले हो जहां से आपको परसिस्टेंस मिलेगा, तो अगर आप ऐसा कुछ करने वाले हो इन फ्यूचर के लिए भी, तो इसको मत एक्टिवेट करो। मैंने कहा ठीक है जी। डोंट यूज दिस ऑप्शन इफ यू आर प्लान टू वांट द सैंडबॉक्स द स्टब। अगर आप इसको एनालिसिस पार्ट में यूज करने वाले हो तो आप एक्टिवेट मत करो इसको। एंड don't use this option if you don't have firewall in the stub destination। और इसका तब भी यूज मत करो अगर डेस्टिनेशन पॉइंट पे यानी कि विक्टिम के पॉइंट पे उसके बाद फायरवॉल नहीं है। तो हमारे लिए तो दोनों ही है, पहले और दूसरे, कि हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं और दूसरा क्रिएट भी करना है, हमें स्टब करप्ट करना है। तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू चेक ऑन दिस लिंक। ठीक है, मतलब इस चेक बॉक्स पे हम क्लिक नहीं करेंगे, हम इसे एक्टिवेट नहीं करने वाले। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद आपको जाना है नेटवर्क सेटिंग्स में। अब नेटवर्क सेटिंग में जाके आपको यहाँ पे डालना है आईपी एड्रेस। किसका डालोगे, अपना, बिकॉज अभी हम क्या कर रहे हैं, खुद के लिए बना रहे हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पे डाला अपना, वही CMD ओपन कर लो एंड CMD पे आईपी चेक कर लेते हैं, आईपी कॉन्फिग। नाउ इट विल गिव मी द आईपी दैट इज 1.81। ठीक है, सो जस्ट पुट इट हियर 192.168.1.2081, राइट। आईपी एड्रेस सेट हुआ। नाउ सिलेक्ट द पोर्ट नंबर व्हिच यू वांट। आपको जो सा भी अच्छा पोर्ट नंबर लगता है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दैट इज द पोर्ट नंबर 1604। अगर आपको कोई और पसंद लाइक 44441337 या फिर आपका 3939, तो आप उनमें से कोई सा ही पोर्ट नंबर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एंड जस्ट आफ्टर दैट जस्ट क्लिक टू ऐड वन। तो ऐड करोगे तो इस पोर्ट नंबर से कनेक्शन क्या होगा, एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब विक्टिम का पहुंचेगा तो विक्टिम का ये वाला आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर वहां पे विजिबल होगा। नाउ मॉड्यूल शीट में चले जाना है आपको। उसके बाद मॉड्यूल स्टार्टअप में, मॉड्यूल स्टार्टअप में जाके कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहले तो आपको क्लिक करना है क्रिएट द स्टब। आप स्टब को क्रिएट करोगे और इसका जो फोल्डर है वो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, माई डॉक्स के अंदर। यहाँ पे जो हम बना रहे हैं स्टब को,
वो हम कर रहे हैं स्टार्टअप के लिए, यानी ये आपका एक बार हमने इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद बूट सेक्शन में जाके इंस्टॉल हो जाएगा, वहीं पे आपका रहेगा। और आप जब भी कोई भी नया जब भी अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे, ये मुझे परसिस्टेंस देना स्टार्ट कर देगा। तो कैसे करेंगे हम, माई डॉक्स के अंदर से करेंगे। दूसरा, माई डॉक्स के अंदर एक फोल्डर बनेगा इस नाम से, और उसके अंदर क्या मिलेगी आपको, ये फाइल मिलेगी, ठीक है। प्लस आप अगर स्टार्टअप पे जाओगे और चेक करोगे अपने फाइल का नेम, तो यू हैव टू सी द नेम, दैट इज अ माइक्रो अपडेट। इफ यू वांट टू चेंज द नेम, तो आप यहाँ पे माइनस करके मतलब हटा के दूसरा नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो स्टार्टअप के अंदर अगर आप की फाइंड आउट करोगे तो उसमें आपको नाम मिलेगा, दैट इज अ माइक्रो अपडेट। दूसरा, आप उसके बाद कुछ और सेटिंग्स है बनाने के लिए, जैसे कि आप चाहते हो एक बार रन होने के बाद ये फाइल जो है कम्प्लीटली रिमूव हो जाए आपके सिस्टम से, तो उसके लिए हम कर सकते हैं मेल्ट यूज कर सकते हैं। चेंज फाइल क्रिएशन डेट, अगर आप फाइल की क्रिएशन डेट चेंज करना चाहते हो तो आप उसको भी सेट कर सकते हैं यहाँ से चेंज करके। एंड परसिस्टेंस इंस्टॉलेशन का मतलब होता है कि एक बार आपने रिक्वेस्ट कर दी, उसके बाद फिर वो आपको एक्सेस देगा और उस परसिस्टेंस को ऑलवेज क्रिएट करता रहेगा जब भी आपका वो किल हो जाएगा। तो जैसे ही आपने अगर सिस्टम बंद किया तो परसिस्टेंस किल होगा, ऐसे आप उसको दोबारा से ऑन करोगे वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। तो ये क्या है, आपका परसिस्टेंस इंस्टॉलेशन। तो अगर आप चाहते हो तो इसे क्लिक कर देना। दूसरा, ड्रॉप द एट्रीब्यूट्स, हिडन रहना चाहिए या सिस्टम वाइज रहना चाहिए, ठीक है। तो आप एट्रीब्यूट को हाइड कर सकते हो। दूसरा, पेरेंट फोल्डर एट्रीब्यूट, जो ये वाला है आपका, है ना, अगर आप इसको हाइड करना चाहते हो तो हिडन पे क्लिक कर दो, और अगर सिस्टम वाइज में चाहते हो सिस्टम वाइज में इसको यूज कर लो, ठीक। तो दीज आर ऑल द सेटिंग्स इन मॉड्यूल स्टार्टअप। नेक्स्ट आपकी इंस्टॉल मैसेज। अब आपको ये इंस्टॉल उसको मैसेज कराना चाहते हो, किस टाइप का मैसेज कराना चाहते हो, लाइक सिंपल सा, लाइक जैसे कि मैं ये जो फाइल है, ये फाइल क्रिएट कर रहा हूँ अपनी, किसके लिए, नॉर्मली वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो मैं इसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम देता हूँ, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट। और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज न्यू एंड critical update of Microsoft Office, ठीक है। और यहाँ से एक मैसेज का वो ले लेते हैं कि इस टाइप का, टेस्ट करके देख लो कैसा आएगा। तो विक्टिम का कुछ इस तरीके का आपका आइकन क्या होगा, पूरा शो होगा मैसेज, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मॉड्यूल शीट में चले गए। अब मॉड्यूल शीट में आप उसको ये हालत बुरी कर सकते हो, कैसे बुरी कर सकते हो, देखो, हाइड स्टार्टअप की फ्रॉम द एमएस कॉन्फिग, जो स्टार्टअप की है उसको हाइड करना चाहते हो तो आप उसको चेक कर दो। परसिस्टेंस प्रोसेस, इट किल्ड, इफ किल्ड इट कम बैक, जैसे किल होगी वैसे ही वापस लाने के लिए अपने आप, अगर वो किल करता है आप किल कर देते हो वापस से रिक्रिएट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आप इसको चेक कर दो। टोटली हाई स्टफ ऑन द एक्सप्लोरर एंड रिलेटेड फाइल एक्सप्लोरर, यानी कि आप फाइल एक्सप्लोरर में से क्या करना चाहते हो, फाइल्स को हाइड करना चाहते हो, ठीक है। स्टफ को हाइड करना चाहते हो तो आप इस पे चेक कर सकते हो। अदरवाइज टोटली हाइड पेरेंट स्टफ फोल्डर, जो MSDSC वाला था, अगर आप उसको हाइड करना चाहते हो फाइल्स में से तो आप उसको हाइड कर सकते हो। दूसरा, डिसेबल फंक्शन, सिस्टम फंक्शन, ठीक है। कुछ डिसेबल के लिए है, जैसे कि आप टास्क मैनेजर उसका लॉक करा सकते हो डिसेबल, ताकि वो टास्क मैनेजर ओपन ना कर पाए। दूसरा, डिसेबल रजिस्ट्रीज हम यूज कर सकते हैं। डिसेबल विंडोज फायरवॉल हम यूज कर सकते हैं, जो कि 7 और XP में आपका काम करता है। दूसरा, डिसेबल यूजर एज अकाउंट हम क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, जिसमें अपना यूजर अकाउंट पैनल नहीं ओपन कर पाएगा, यानी पासवर्ड वाला पैनल जो था वो नहीं ओपन कर पाएगा। फिर वर्क इन ऑर्डर सिस्टम सच एज XP वर्जन 2, सर्विस पैक वर्जन 2 एंड उससे पहले पे काम करता है। और बिफोर लाइक आप डिसेबल कर सकते हो एंटीवायरस नोटिफिकेशन, आप उसका डिसेबल कर सकते हो। सिक्योरिटी सेंटर आप डिसेबल कर सकते हो। विंडोज अपडेट उसके आप डिसेबल कर सकते हो। कंट्रोल पैनल तो आप उसका सबको डिसेबल कर सकते हो, जहां जहां से वो इस सॉफ्टवेयर को रिमूव कर सकता है। तो हर चीज डिसेबल है तो वो इजिली इसको रिमूव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, फिर होते हैं की लॉगर्स। की लॉगर्स में क्या है, मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर रखे हैं की लॉगर। इट मींस कि आपको क्या देंगे,
वहीं पे स्टोर होंगे, आप जब चाहे तो ओपन करके देख सकते हो। अगर आप रिमोट स्टोर लेना चाहते हो तो आप यहाँ से अकाउंट टाइप उसको बताओ, ठीक है, FTP का अपना वो डाल दो, यूजर नेम डाल दो, पासवर्ड डाल दो, पोर्ट नंबर सेट है, पाथ डाल दो, देन बस ओके। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वहां से लॉग फाइल्स को आपको सेंड करता रहेगा, ठीक है। दूसरा ऐड प्लगइन्स का होस्ट फाइल के अंदर आपको कुछ सेट नहीं करना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, याद रखना, क्योंकि होस्ट फाइल अगर हम डॉस अटैक के लिए बना रहे होते हैं तो हम होस्ट फाइल लेते हैं, तो हमें नीड नहीं है यहाँ पे। ऐड प्लगइन्स आप कर सकते हो, लाइक आप वर्डप्रेस वगैरह की वेबसाइट डिजाइन करते हो या किसी भी टाइप की सीएमएस की डिजाइन, सीएमएस टाइप ऑफ कुछ भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिजाइन कर रहे हो, तो उस केस में या क्रिएट कर रहे हो, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस ऑप्शन को ऐड प्लगइन्स को ले सकते हो, डिफरेंट प्लगइन्स को ऐड करता है। दूसरा फाइल बाइंडर, तो फाइल बाइंडर आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, लाइक किसी अनदर फाइल के साथ आप इस सॉफ्टवेयर को बाइंड करके भेजना चाहते हो, तो अभी हम यहाँ पे फाइल बाइंडर यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आगे चल के आपको दिखाऊंगा फाइल बाइंडर किस तरीके से काम करता है और क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास चूज एन आइकन, आप कोई आइकन देना चाहते हो तो आई एम जस्ट सिलेक्टिंग अ कस्टम आइकन। इफ यू आर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पे केवल एग्जीक्यूटिव फाइल आइकन लिया है क्योंकि मेरे पास कस्टम में अवेलेबल था। दूसरा स्टफ फाइलाइजेशन में आपके पास कई सारे ऑप्शन है, जैसे exe.com, .baf, .pif, .screensaver, हम यहाँ से exe लेके चल रहे हैं विद द नो कंप्रेशन मेथड के साथ, एंड जस्ट क्लिक टू ओके। ठीक है, स्टफ, क्रिएट द स्टफ या बिल्ड द स्टफ। अब आपसे ये नाम पूछ रहा है किस नाम से बनाना है, तो यू जस्ट नीड टू सेट द नेम। तो फर्स्टली मैं पुरानी वाली फाइल को डिलीट कर दूं। नाउ मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, दैट इज ऑफिस अपडेट, ठीक है, एंड जस्ट क्लिक टू सेव ऑन द डेस्कटॉप। तो देखो क्रिएट हुआ, यहाँ पे ऑफिस अपडेट आई और ये फाइनली यहाँ पे क्रिएट हो गई है विद द विंडोज फोल्डर, विंडोज आइकन, राइट। सो इसको ध्यान से देखो, तो ये आपकी कैसी दिख रही है, ओरिजिनल टाइप की ही फाइल है ना। तो अगर ओरिजिनल टाइप की फाइल है तो हम इस ओरिजिनल फाइल को यूज भी कर सकते हैं, कैसे करना है अब वो डिपेंड करता है। अब डिफरेंट प्रोसीजर हमारे पास क्या है कि आप इस फाइल को विक्टिम तक सेंड कैसे करोगे, दिस इज अवर मेन टारगेट, राइट, फाइल को सेंड करना। तो विक्टिम को सेंड करने के लिए हम डिफरेंट कम्युनिकेशन का यूज कर सकते हैं, लाइक वी कैन यूज ईमेल कम्युनिकेशन, we can use a like normal file transfer, we can directly send on the WhatsApp and just say that just open this file into your desktop, है ना। कुछ तरीके से हम बना के रखते हैं, उसको सेंड कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर यूज कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज अ प्रोसीजर दैट इज अ सिंपल वन। और इसमें हम क्या करेंगे, आपका फाइल को अपलोड कर देंगे एक सर्वर पे और फिर वहां से हम कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। So I'm just going to use यहाँ पे लिंक ले लो, that is easyupload.io। just upload the file। तो ऑफिस अपडेट वाली फाइल ले लेते हैं, जस्ट क्लिक टू ओपन। इसको अपलोड कर दो आप। तो मैं वन डे के लिए अभी के लिए केवल अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, कोई पासवर्ड नहीं दिया मैंने, जस्ट क्लिक टू अपलोड। 707 KB की फाइल है। यहाँ से लिंक ले लेते हैं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दिस लिंक इनटू द विक्टिम्स मशीन।
यहाँ पे ऑफिस अपडेट 4 के नाम से डाउनलोड हुई है। आई एम जस्ट गोइंग टू रन दिस एप्लीकेशन जस्ट अ सिंगल क्लिक, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, राइट। सो मैंने क्लिक किया, नॉर्मली देखो एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन का मैसेज आया और यहाँ पे एक मैसेज आ गया, वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, दिस इज अ न्यू एंड क्रिटिकल अपडेट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, राइट। दैट्स इट। मैंने यहाँ पे रन करा दिया, इसको बंद किया। अब देखो आपको करना क्या है, आपको अटैकर मशीन पे जाना है एंड देन आपको यहाँ पे पोर्ट दिख रहा है, तो बंद कर देते हैं पहले ये वाला। आपको पोर्ट में जाना है, न्यू पोर्ट पे क्लिक करना है। आप न्यू पोर्ट पे क्लिक करोगे देन यहाँ पे पोर्ट नंबर डाल दो जो सा आपने वहां पे लिखा था। तो मैंने वहां पे 1604 पोर्ट नंबर यूज किया था और just click to listen and just wait for the connection. So now look at here, the connection is completely established and this is having a 192.168.1.82. This is the IP of the victims. So if you want you just go and check. हमारे पास फैसिलिटी है तो हम चेक करके क्रॉस चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि आईपी एड्रेस सही है कि नहीं। आई एम जस्ट यूजिंग IP config and just press enter, so it will give me the result, that is a 192.168.1.82, right। so मुझे IP एड्रेस यहाँ से मिल गया, सही है, मेरा पता चल गया। अब आपको करना क्या है, इस पे जाके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही इसमें अलग अलग एक्टिविटीज ओपन हो जाएंगी एंड नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस अबाउट दैट एक्टिविटीज हियर, ठीक है। सो अब एक्टिविटी डिस्कस करेंगे क्या क्या एक्टिविटीज आपके सिस्टम में विक्टिम अटैकर्स के थ्रू हो सकती है। क्लियर है? चलो तो कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास मशीन्स हैं, ठीक है। हमने एक्टिविटी मैनेजर अपना ओपन कर लिया है कि किस टाइप की एक्टिविटी होने वाली है वहां पे, ठीक है। सो सबसे पहले आई एम जस्ट गोइंग टू स्विच ताकि आपको दोनों तरीके से विजिबल हो। नाउ ये मेरी क्या है, अटैकर मशीन है एंड दिस इज माय विक्टिम मशीन। तो अटैकर मशीन में हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, सबसे पहले तो इसकी रैम चेक कर लेते हैं, रैम CPU। अच्छा, मैं इसको वर्चुअल मशीन में यूज कर रहा हूँ, सो इट विल नॉट गिविंग मी द एग्जैक्ट CPU consumption, but it will tell me the RAM consumption, right। 30% RAM अभी यूज हो रही है इसकी and it will show me the graph also। so आप इसे बार्स में चेक कर सकते हो, आप इसे फील्ड लाइन में चेक कर सकते हो, लाइंस में देख सकते हो, या डॉटेड्स में देखना है आपको उस तरीके से देख सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास किससे के देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कंप्यूटर इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जस्ट गो एंड रिफ्रेश, तो यू विल सी यहाँ पे जो कनेक्शन स्टैब्लिश है सर्वर का, यानी हमारा वो क्या है 192.168.1.81 एंड 1604 के थ्रू पोर्ट नंबर कनेक्टेड है। कंट्री देखोगे तो इंग्लिश आपको यूनाइटेड स्टेट बता रहा है, जो मैंने सेट कर रखी होगी उसका उस पर्टिकुलर विक्टिम मशीन की। दूसरा आपको उसका नाम दिखा रहा है कि Win7x64, दिस इज अ यूजर जो वहाँ पे इस समय एक्टिवेटेड है। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखा रहा है विंडोज 7 सर्विस पैक 17601 पे चल रहा है। स्क्रीन रेजोल्यूशन आपकी ये है, माउस के अंदर आपके 3 बटन हैं, बता रहा है आपको। एक्टिव कैप्शन के अंदर कुछ नहीं दिखा रहा। सिस्टम डायरेक्टरी सिस्टम 32 के अंदर है, विंडो डायरेक्टरी आपकी विंडोज के अंदर है। यूजर SID यानी कि सेशन ID जो है यूजर की वो ये है आपकी। मैक एड्रेस यूजर का ये दिखा रहा है आपको, यानी विक्टिम का। दूसरा सिस्टम अप टाइम 36 मिनट्स पहले ऑन किया गया था, तो 36 मिनट पहले का दिखा रहा है। टाइप में आपको कंप्यूटर टाइप का बता रहा है। बायोस में आपको बता रहा है बायोस डेट क्या है, वो ये है उसकी। बायोस ID क्या है, बायोस टाइप क्या है एंड बायोस वेंडर कौन है, जेन्युइन इंटेल, ठीक है। दूसरा सर्वर लोकेशन आपको बता रहा है कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है ये आपके सी के अंदर यूजर्स के अंदर जो हमने फाइल सेंड करी स्टब, वो कहाँ पे सी के अंदर यूजर्स के अंदर जो
यूजर है उसके अंदर, देन डॉक्यूमेंट्स के अंदर, देन MSDSC फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है एनेक्स करके, उसके अंदर आपकी फाइल है। तो इफ यू वांट टू गो एंड जस्ट क्रॉस चेक, तो आप जस्ट सी पे जाओ, यहाँ पे यूजर सिलेक्ट कर लो, अपना जो भी यूजर है, दिस इज द यूजर नेम, सिलेक्ट कर लिया। नाउ जस्ट डॉक्यूमेंट्स में चले जाओ, डॉक्यूमेंट्स में जाके ये रहा फोल्डर, जस्ट ओपन द फोल्डर एंड लुक एट हियर, देयर इज अ फोल्डर नेम दैट इज दिस वन, राइट, 4/12/2020, अभी का 3/49। तो इसे ओपन करोगे, दिस इज अ फाइल जो यहाँ पे क्या हो रही है, रन हो रही है, ठीक है। कहाँ पे है ये, आपके बायोस पे। म्यूटेक्स प्रोसेस में आपको दिख रहा है जो हमने वहाँ पे सेट करी थी कनेक्शन के लिए, UUID दिख रही है एंड द की लॉगर दैट इज यस। इफ यू वांट टू ग्रैब दिस इंफॉर्मेशन, सो जस्ट क्लिक ऑन टू ग्रैब इन्फो और ये आपकी निकल के आ जाएगी। ट्रेस मैप आप चेक कर सकते हो, बट ये मेन उस पे काम करता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू चेक द ट्रेस मैप नाइट हियर। नाउ सिस्टम फंक्शंस के बाद आपके पास आते हैं फन फंक्शंस। तो फन फंक्शंस में देखो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ फन फंक्शन में चला गया, सबसे पहले है हाइड डेस्कटॉप। सो हमने हाइड कर दिया, सो नाउ लुक एट हियर, हाइड हो गया आपका डेस्कटॉप, लेफ्ट स्क्रीन पे ध्यान दो। दूसरा, शो डेस्कटॉप किया तो वापस आ गया। हाइड क्लॉक, अब देखो राइट हैंड साइड पे क्लॉक जो है आपकी हाइड हो गई लेफ्ट स्क्रीन में, शो किया वापस आ गई। दूसरा, हाइड सिस्टम ट्रे टास्क आइकन्स, तो पूरे टास्क आइकन हाइड हो गए, शो किए वापस आ गए। सिस्टम हाइड सिस्टम ट्रे आइकन्स, तो सिस्टम ट्रे आइकन्स आप हाइड कर सकते हो, वापस ला सकते हो। हाइड टास्क बार, तो कंप्लीट पूरा टास्क बार यहाँ से देखो हाइड हो गया, है ना, नहीं दिख रहा, और वापस आ गया शो टास्क बार। स्टार्टअप बटन को हाइड कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सपी में चलता है, तो लेट्स ट्राई। मैंने किया, देखो स्टार्टअप बटन हाइड नहीं हुआ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है डिसेबल कर सकते हो आप स्टार्टअप को, लेकिन ये भी एक्सपी पे चलता है, तो लेट्स चेक। नहीं है, इस पे नहीं है, एक्सपी पे चलेगा। नाउ डिसेबल टास्क मैनेजर, हमने डिसेबल किया टास्क मैनेजर, जस्ट राइट क्लिक एंड ओपन द टास्क मैनेजर। तो नाउ लुक एट हियर, देयर इज अ मैसेज, टास्क मैनेजर हैज बीन डिसेबल्ड बाय योर एडमिनिस्ट्रेटर, राइट। सो यहाँ पे टास्क मैनेजर क्या हुआ, डिसेबल्ड हो गया। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू इनेबल द टास्क मैनेजर, राइट क्लिक एंड जस्ट ओपन द टास्क मैनेजर। सो नाउ लुक एट हियर, इनेबल करते ही टास्क मैनेजर वापस से ओपन हो गया, ठीक है। तो ये थे, फिर उसके बाद CD ओपन करा सकते हो। तो CD की आपको केवल आवाज आएगी, जो मेरे मेन सिस्टम की है उससे ओपन होगा, तो जस्ट क्लिक। नाउ कुछ आवाज आई हल्की सी कट की, दोबारा सुन सकते हो, लाइक मैंने दोबारा से अगर क्लिक किया, है ना, तो ये क्या हो रही है, ये CD की आवाज है। तो आपका CD अगर लगा हुआ है डेस्कटॉप के अंदर, तो वहाँ पे CD ओपन एंड क्लोज का ऑप्शन होता है, तो आप ओपन CD कर सकते हो एंड क्लोज CD कर सकते हो, दोनों तरीके से, ठीक है। तो आप ओपन एंड क्लोज वहाँ पे करा सकते हो। नाउ पियानो फंक्शन में चले गए, तो आप यहाँ पे कुछ बजा के उसे सुना सकते हो, ठीक है। देखो अलग अलग साउंड्स निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, विक्टिम के सिस्टम से। ठीक है, फिर आप उसे फ्रीक्वेंसी सेंड कर सकते हो, किस टाइप की। नाउ लुक एट हियर, ये किस लिए है कि अगर विक्टिम ध्यान नहीं दे रहा आपके, लाइक आपने हैक कर लिया और आप उसे शो करा रहे हो, वो ध्यान ही नहीं दे रहा, अपने में मग्न है बेचारा, है ना, तो आप उसको बताओ कि आपका सिस्टम जो है वो हैक हो चुका है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो बीप साउंड, तो उसे आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा, आप मैसेज बॉक्स सेंड कर सकते हो, कुछ मैसेज वहां पे प्रिंट करा सकते हो, जैसे कि मैं उसे एक वार्निंग मैसेज दे देता हूँ। मैसेज टाइटल है वार्निंग मैसेज, या वार्निंग देते केवल, है ना। वार्निंग के लिए हमने वार्निंग वाला साइन भी ले लिया, एंड तो यहाँ पे लिखा रहने देते हैं इसको, थोड़ा सा और इसके अंदर वार्निंग डाल देते हैं, लाइक योर सिस्टम is not compatible to new updates, visit my website, कोई वेबसाइट डाल दी जैसे हमने,
कोई भी अपनी कस्टम वेबसाइट बना के विजिट माय वेबसाइट टू चेक द प्रोसेस, राइट, ठीक है। और नीचे एक वेबसाइट दे दी, ठीक। तो अब वेबसाइट किस तरीके का मैसेज आएगा, सेंड किया तो उसका मैसेज आएगा योर सिस्टम इज नॉट कंपेटेबल टू न्यू अपडेट, विजिट माय वेबसाइट टू चेक न्यू प्रोसेस एंड दिस वन। तो क्लिक करके इस पे जाके चेक कर सकता है, ठीक है। फिर है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट रीडर। आप अगर क्या होता है कि पहले के जितने भी फंक्शंस, आज के डेट में भी लोग, बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट रीडर्स यूज करते हैं। तो अगर उनके पास माइक्रोसॉफ्ट रीडर्स हैं तो आप यहाँ से कुछ भी लिख के जब सेंड करोगे तो वहाँ पे वो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट आई डोंट हैव अ माइक्रोसॉफ्ट रीडर, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे नहीं ओपन होगा। रिमोट चैट, आप रिमोट चैट कर सकते हो। तो देखो विक्टिम के पास भी ओपन हुआ, आपके पास भी। तो विक्टिम का क्लोज ऑप्शन नहीं है, बट यू हैव अ क्लोज ऑप्शन। मैं आप यहाँ से लिख के भेजा हाय, तो उसके बाद जाएगा वो केवल रिप्लाई दे सकता है। हु आर यू, इसे लिख के भेजा आई एम योर फ्रेंड, एंड ये कह रहा है कौन सा फ्रेंड, टेल मी योर नेम, ठीक है। तो इसने कह दिया आई एम योर, माय नेम इज एनोमिनस, माय नेम इज एनोमिनस, है ना। तो इस तरीके से चैट होती रहेगी। आप नज भेज सकते हो, विक्टिम देख नहीं रहा, रिप्लाई नहीं दे रहा, 2 मिनट तक आपने वेट किया तो आप ऐसे नज भेज दो ताकि वो हिलना चैट हो जाएगा, चैट हिलना चालू कर देगा उसकी, तो वो परेशान हो जाएगा ये क्या हो रहा है, ठीक है। दूसरे आप सेंड करने के लिए मैसेज सेंड ऑप्शन है, एंड एक्सपोर्ट करना चाहते हो चैट को, एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है। बंद करोगे उसके पास से भी क्लोज हो जाएगा। दूसरे रिमोट फंक्शंस हैं, ये फंक्शन समझ में आए फन वाले। हाँ सर। दूसरे है प्रोसेस मैनेजर। देखो प्रोसेस मैनेजर में आप ओपन करोगे तो इट विल वर्क ऑन द मेन होस्ट मशीन, तो वर्चुअल मशीन है, नहीं दिखा रहा। रजिस्ट्रीज आपको दिखा, रजिस्ट्री भी नहीं दिखा रहा आपको, है ना। दूसरा रिमोट शेल, आप ये यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने नेट स्टेट -ONA-A एंड फाइंड लिसन किया कौन कौन से कनेक्शन है वहां पे, तो जस्ट एंटर करोगे। ओके ये नहीं चल रहा, देन आई विल ट्राई लाइक ipconfig, क्या बात है, सारे कमांड्स बंद है, डायरेक्टरीज चल रही है, ठीक है। तो डायरेक्टरीज में देखो डाउनलोड के अंदर है ये, और डाउनलोड के अंदर इसे क्या क्या दिख रहा है, ये सारे यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। मैं अगर चेक करूँ नेट यूजर, तो यहाँ पे कितने यूजर है, नहीं दिखा रहा। नेट कमांड से यहाँ पे कंपेटेबल नहीं है, ठीक है। तो नेट कमांड आप यूज नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम ये नहीं यूज कर सकते, हम दूसरे कमांड्स यूज कर लेंगे, लाइक, है ना। तो हमने यहाँ पे cd करके स्पेस डॉट डॉट बैक चले गए, cd स्पेस डॉट डॉट बैक पे आ जाते हैं, तो हम वापस यूजर्स पे आ गए, ठीक है। यूजर्स के अंदर जो भी हमारा यूजर है एक बार उसको हमको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो cd win स्पेस 7x64 एंड ब्रैकेट में नंबर है 1। तो हमने यूजर के अंदर एंट्री ली। नाउ cd डेस्कटॉप, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे चलते, एंटर। अब आप यहाँ पे dir करोगे तो आपको सारे डायरेक्टरीज दिखाएगा जो डेस्कटॉप पर है। नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं 4, 61, 87 एंड 112। नाउ लुक एट हियर 4, 61, 87 एंड 112, ठीक है। फिर आपके पास कुछ जैम का पड़ा हुआ है, तो नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे जैम का फाइल पड़ी हुई है। फिर पावर ISO पड़ी हुई है, तो पावर ISO भी है यहाँ पे, ये बड़ी पावर ISO। फिर आपका ऑफिस वाली फाइल पड़ी है, ऑफिस 2007। नाउ लुक एट हियर, देयर इज ऑफिस 2007, है ना। तो अलग अलग टाइप की डायरेक्टरीज भी हैं, फाइल्स भी हैं, हर एक चीज अवेलेबल है, आप देख सकते हो। आप यहाँ से डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड कर सकते हो, एवरीथिंग, ठीक है।
कुछ यहाँ पे, अब अगर आपको याद हो शट डाउन वाला कोड जो हमने चलाया था SHUT, है ना, शट डाउन वाला, रिमेम्बर दैट। तो अगर मैं यहाँ पे शट डाउन वाला कोड चला दूं और एंटर कर दूं तो ये यहीं पे बंद हो जाएगा सिस्टम, राइट, क्योंकि हमारे पास क्या है, CMD से परमिशन है ना, Yes, sir. तो बंद हो सकता है पर हम करेंगे नहीं। दूसरा फिर क्या है, विंडोज लिस्ट, ये भी आपके मेन पे चलेगी। अनइंस्टॉल एप्लीकेशन सिस्टम प्रिविलेजेस आप देख सकते हो, जस्ट गो टू रिफ्रेश एंड नाउ लुक एट हियर, देयर आर मल्टीपल प्रिविलेजेस, जैसे कि बैकअप ले सकते हो, रिस्टोर सेट है यहाँ पे, आपका सिस्टम प्रोफाइल के हैं, सिस्टम लोड ड्राइवर्स हैं, देयर मल्टीपल, है ना, सिस्टम प्रिविलेजेस, रिमोट शटडाउन एक्टिव है यहाँ पे, चेंज नोटिफिकेशन आप वो देख सकते हो कौन कौन से यहाँ पे सेट हो रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, होस्ट फाइल, होस्ट फाइल के अंदर आपकी मेन होस्ट फाइल ये वाली सेट है यहाँ पे, आप चाहो तो इसके अंदर होस्ट फाइल में चेंजेस करके कुछ और ओपन करना चाहते हो तो वो भी करा सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है रिमोट कॉन्फ़िगरेशन, तो स्टार्टअप सर्विस स्टार्टअप मेन पे चलेगा, रजिस्ट्री स्टार्टअप मेन पे चलेगा, तो ये नहीं चल रहा है हमारे। ओके, रिमोट स्क्रिप्टिंग ये काम करेगी, हमने यहाँ पे क्या कि एक HTML का नॉर्मल सा कोड लिख दिया, रेफरेंस इज इक्वल टू, मैंने इसके अंदर एक लिंक दे दिया एंकर टैग के अंदर, दैट इज http://www.ggle.com, ठीक है। एंड इसको क्लोज करते हैं, बंद किया, तो यहाँ पे लिख दिया क्लिक हियर, कस्टम पेज दिया है। अब आप ऐसे समझ के चलो आपने कोई फेक डॉस वेबसाइट बना रखी है या कुछ भी, कोई वायरस मेकिंग वेबसाइट, तो उसका लिंक आप दे सकते हो, ठीक है। तो क्लिक हियर टू सी मैजिक, राइट, और इस ए को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक। नाउ जस्ट लॉन्च द स्क्रिप्ट, लॉन्च करते ही ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिफॉल्ट ब्राउजर है वो ओपन होगा, एंड डिफॉल्ट ब्राउजर के साथ एक टेक्स्ट आ जाएगा, बंदा देखिएगा क्या है, जस्ट क्लिक करेगा, वो उस मैलिशियस फाइल के ऊपर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा, बट एग्जैक्टली वो मैलिशियस नहीं है, हमने तो यहाँ पे गूगल यूज करा है, अटैकर जो है वो मैलिशियस यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बैश स्क्रिप्टिंग, अब आपको याद होंगे बैश कोड जो थे हमारे पास, राइट, तो बैश कोड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो रन स्क्रिप्ट इन हिडन डॉस विंडो, जो आपकी डॉस विंडो है वहां पे आपको विजिबल नहीं होगी, तो आप वो यहाँ पे चला सकते हो, यानी आपको बैकएंड पे चलता रहेगा, पूछा था ना बैकएंड पे चलता रहे दिखाई ना दे, तो आप इसको रन कर दो, तो अगर आपको याद हो दैट इज %0 एंड 5 एंड %0, बस सिंपल सा कोड है, चला के रन कर दोगे तो उसके सिस्टम क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड में ऑटोमेटिकली क्रैश कर जाएगा, ठीक है। तो हम इसको नहीं चलाएंगे। विजुअल स्क्रिप्टिंग चला सकते हो, विजुअल बेसिस स्क्रिप्टिंग, तो अगर वहाँ पे एक्सेल वगैरह इनेबल्ड है, चल रहा है, तो आप विजुअल की स्क्रिप्टिंग चला सकते हो, तो मेरे पास वहाँ पे एक्सेल वगैरह कुछ भी नहीं है, सो दैट्स आई एम नॉट गोइंग टू रन दिस थिंग। सर में आया स्क्रिप्टिंग कैसे रन करनी है। Yes, sir. नेक्स्ट है आपके फाइल मैनेजर, अब देखो फाइल मैनेजर के अंदर से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इसके अंदर से फाइल मैनेजर में क्या क्या है यहाँ पे, डिफरेंट ओके, सो आता है फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर में क्या आप एक्सप्लोर कर सकते हो फाइल, ये हमारा सिस्टम है, ये विक्टिम का सिस्टम है, ठीक है। तो विक्टिम के सिस्टम में सी में गए, सी के बाद हम यहाँ से यूजर में गए, यूजर के बाद हमने यूजर, ओहो शिट, बैक कर लो यहाँ से एंड यूजर सेलेक्ट करो, यूजर के बाद डेस्कटॉप पे चले जाओ, एंड यहाँ पे जो सी भी इमेज आप सिलेक्ट करोगे वो हमारे पास आ जाएगी, या देखो उसके बाद 4 इमेजेस पड़ी हैं, आप वहां से कुछ लेना चाहते हो तो जस्ट आप वहां से ले सकते हो। So already I have this image, तो firstly I am just going to delete this image, 4 वाली कौन सी है, 4 वाली नहीं है मेरे पास, तो मैं 4 वाली इमेज जो है वो यहाँ से इसकी क्या करता हूँ, या इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, तो उसके बाद नाम भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता है, हम इस इमेज को रिसीव कर लेते हैं, कहाँ करेंगे, अपने डेस्कटॉप पे, जस्ट सी यूजर सेलेक्ट किया,
Now let's go to the desktop and 4 वाली इमेज है, ठीक है। तो फर्स्टली आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस इमेज फ्रॉम हियर। तो मैंने अपने पास से डिलीट कर दी, ठीक है। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रिसीव दिस इमेज। तो मेरे पास इमेज आ गई है, जस्ट रिफ्रेश इट। नाउ लुक एट हियर, इमेज वापस आ गई, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आपको इमेज डेस्कटॉप पे दिख जाएगी। ये देखो, ये रही इमेज, ठीक है। सो आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो, फाइल्स को ले सकते हो। कुछ डालना चाहते हो उसके पास तो वो भी कर सकते हैं हम। जैसे कि उसके पास ये वाली एक इमेज पड़ी है, आई जस्ट वांट कि पहले डिलीट कर देते हैं हम, या यहीं से हम डिलीट कर देते हैं। छोड़ो, यहाँ पे गए, जस्ट राइट क्लिक एंड डिलीट, हाइड एंड शो थंबनेल, रीनेम सिलेक्टेड, रीनेम कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने इसका नाम जो है वो रीनेम करके कर दिया 11, एंटर। तो देखो फाइल का नाम क्या हो गया, रीनेम हो गया यहाँ से, है ना। अब मुझे यहाँ से सेंड करनी है ये वाली फाइल, मैंने सेंड कर दी, वहां पे उसके बाद पहुंच गई, ये आ गई फाइल, देखो 112 वाली, ठीक है। जस्ट रिफ्रेश इट, रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। अब जो आपने सिलेक्ट किया है उसे आपको डिलीट करना है, तो आप क्या करो, सिलेक्टेड को जस्ट क्लिक करो, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट अ सिलेक्टेड फाइल, यस। और ये फाइल देखो डिलीट हो गई यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो, इसको रीनेम कर सकते हो, और वहां से सेव रिसीव कर सकते हो, सेंड भी कर सकते हो। क्लियर है ये चीज, फाइल मैनेजर। दूसरा है सर्च फॉर फाइल्स। आप कोई फाइल को सर्च करना चाहते हो तो आपको लोकेशन पता है, तो ये जस्ट यूज इट, गो एंड सर्च इट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पासवर्ड एंड डेटा। तो स्टोर पासवर्ड है अगर उसके पास कुछ, तो आप रिफ्रेश करो, यहाँ पे स्टोर पासवर्ड डालेंगे तो दिस मशीन इज नॉट हैविंग अ स्टोर पासवर्ड बिकॉज मैंने कुछ कभी किया ही नहीं है इस पे, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे स्टोर नहीं है। अदरवाइज कोई भी सोशल मीडिया ओपन होता है उसके स्टोर पासवर्ड आपको मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूटोरेंट डाउनलोड्स। आपने अगर वो यूटोरेंट यूज करता है तो आप यहाँ पे डाउनलोड लिस्ट देख सकते हो, उसका इंटरेस्ट पता चल जाएगा आपको, फिर उससे रिलेटेड आप एक्सप्लॉइट वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है, ताकि उसे पता ही ना चले। फिर क्या है उसके बाद, एमएसएन फंक्शन, एमएसएन कंसोल कंट्रोल्स गाइस बहुत पहले चलते थे, तो आपके पास अगर एमएसएन की सर्विस है तो आप एमएसएन का यूज कर सकते हो, कॉन्टेक्ट लिस्ट यूज कर सकते हो उसकी। स्पाई फंक्शंस में वेबकैम एक्सेस हो सकता है, तो माय वर्चुअल मशीन इज नॉट हैविंग अ ड्राइवर ऑफ वेबकैम, सो दैट इसका वो नहीं देख सकते, देयर इज नो ड्राइवर। अगर होता तो ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेता और स्टार्ट कर सकता हम कैप्चरिंग, ठीक है। तो कह रहा है ड्राइवर सेलेक्ट करो, आई डोंट हैव अ ड्राइवर इन वर्चुअल मशीन्स। साउंड कैप्चर, दैट इज गोइंग टू वर्क, लाइक आप साउंड कैप्चर ओपन कर लो, और यहाँ पे भी ओपन कर लेते हैं, लेट्स सी क्या एक्टिविटीज होती हैं। तो मैंने कैप्चरिंग पे क्लिक किया, तो कैप्चर में क्या है कि जो जो चीजें वो बोल रहा है वो आपको यहाँ पे सुनाई देगी, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सुनाई देगी, ठीक है। अब अगर आप स्पीक करोगे कुछ तो उसके पे आवाज आएगी, लाइक मैंने स्पीक किया, हेलो यूजर 1 2 3, हेलो यूजर 1 2, है ना। फिर दोबारा आप कर सकते हो, हेलो यूजर 1 2 3 4, हेलो यूजर 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या थे, ये आपके स्टोरेज सिस्टम से है कि आप साउंड कैप्चर वो नहीं सुन रहा तो आप उसे कुछ सुना सकते हो। रिमोट स्टोरेज, आप उसका पूरा एक्सेस ले सकते हो, पूरे उस साइज पूरी विंडो का। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, तो ना लुक एट हियर, पूरी विंडोज की विजिबल हो रही है मुझे। मैं जो सा ही फोल्डर सेलेक्ट करूंगा वो फोल्डर वहां पे उसको दिखाई देगा सिलेक्टिव, इवन उसने किसी फाइल को ओपन किया है, फोल्डर को ओपन किया तो वो भी मुझे पता चला है। जैसे मैंने ये ओपन किया तो मेरे पास भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं नॉर्मली इसको क्या कर सकता हूँ, यूजर भी डिलीट कर सकता है, मैं भी डिलीट कर सकता हूँ, ठीक। सो ये जो चीज है ये हम किसके थ्रू करते हैं, अपने डेस्कटॉप पे एक्सेस लेके। दूसरा, आप की लॉगर्स चेक कर सकते हो यहाँ पे। की लॉगर्स में क्या है, जैसे अभी लास्ट की लॉगर अगर हम देखें तो ओपन हुई थी सिक्योरिटी वार्निंग फाइल जो हमने ओपन कराई थी, ठीक है। साइज दिखा रहा है, फाइल ओपन हुई थी, टाइम दिखा रहा है, नीचे आओ और नीचे आओ, देखो फाइल्स ओपन हुई थी। फिर हमने टैब्स दबा के उनको स्विच किया था, सीएमडी ओपन किया था कमांड रन कराने के लिए, है ना। फिर हमने आईपी कॉन्फ़िग चलाया था,
तो हमारा काम नहीं किया था। फिर हमने हु चैटिंग करी थी उससे, कौन सा फ्रेंड, टेल मी योर नेम, है ना, तो वो आ रहा है यहाँ पे। फिर हमने आईपी कॉन्फ़िग दोबारा चलाया था, तो वो आ रहा है हमारे पास, देख रहे हैं। तो ये है आपके की लॉगर्स। अब आप की लॉगर्स इनेबल है, डिसेबल कर दोगे तो बंद हो जाएंगे, रिफ्रेश करोगे तो कोई नया आया होगा तो वो स्कॉट हो जाएगा। इफ यू वांट टू चेक द प्रीवियस की लॉगर्स, तो आप प्रीवियस की लॉगर्स चेक कर सकते हो। अलग अलग डेट के अलग अलग मंथ की लॉगर्स है यहाँ पे, देखो ये देखो, कुछ डिलीट किया गया होगा, क्रोम ओपन किया गया था तो क्रोम का आ रहा है, आया समझ में। ये क्या है आपके की लॉगर्स, ये थे रिमोट स्टोरेज। अब क्या है नेटवर्क फंक्शन। तो नेटवर्क फंक्शन में अलग अलग एक्टिविटीज है, जैसे एक्टिव पोर्ट्स आप देख सकते हो, पोर्ट्स, शेयर्स, सॉकेट्स, लैन कंप्यूटर्स, कौन कौन से लैन में कनेक्टेड है, तो रिफ्रेश करके लिस्ट देख सकते हो। बट माय सिस्टम इज बेसिकली कनेक्टेड ना नॉर्मली, तो इट विल गोइंग टू स्कैन लाइक जो आपका लैन स्कैन लैन होता है। नेटवर्क गेटवे आप चेक कर सकते हो, तो इट विल गिव यू द नेटवर्क गेटवे। आईपी स्कैनर, आप आईपी स्कैनर का यूज कर सकते हैं। हम कोई आईपी स्कैन करानी है आपको, तो मैंने जैसे यहाँ पे दे दिया .com, ठीक है, एंड स्कैन। तो पोर्ट रेंज जो है वो आपने एक दे रखी है, तो स्कैन यहाँ से यहाँ तक। अगर आप कोई और रेंज दोगे तो उसके ऊपर स्कैन करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं कि आप किस तरीके करते हो। प्लस हमने यहाँ पे क्या किया, ओके, यूआरएल डाउनलोड, को यूआरएल डाउनलोड करना चाहते हो कहीं से, तो वो यहाँ से डाउनलोड कर देगा। जस्ट ऐड करना है आपको, लॉन्च कर देना है। ब्राउज पेज करा सकते हैं हम, तो जैसे हमने अगेन https:// हमने यहाँ पे दे दिया लाइक gmail.com, ठीक है, एंटर कर दिया तो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट लॉन्च होगी और gmail.com उसके सिस्टम पे ओपन हो जाएगा। अब डिपेंड करता है उसके, अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी है तो जल्दी होगा, स्लो है तो लेट में होगा, है ना। नाउ उसके बाद क्या है, रीडायरेक्ट टू आईपी पोर्ट, किसी पोर्ट पे रीडायरेक्ट करना चाहते हो, एंटर द न्यू पोर्ट टू विच द सर्वर विल ट्राई एंड अटेम्प्ट टू कनेक्ट। तो कोई भी नया पोर्ट, जैसे 1337 मैंने यहाँ पे दे दिया, ओके कर दिया, तो कह रहा है एंटर द पोर्ट, उस पे कनेक्ट लेने का ट्राई करे, तो 1337 में एक बार दोबारा ट्राई कर लेता हूँ, है ना। तो कनेक्शन देखो चला गया, ये रहा। अब मैं यहाँ पे जाके अगर 1337 डाल के कनेक्शन लेने का ट्राई करूँ, 1337 एंड जस्ट क्लिक टू लिसन, एरर नहीं ले रहा उससे कनेक्शन, है ना। तो यहाँ पे हमने ट्राई किया 1604 अगेन, क्लिक टू लिसन, अब ये एरर पे चला गया। सॉकेट क्या हो गया, ब्रेक हो गई है सॉकेट लाइन यहाँ पे। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार विक्टिम को या तो रिस्टार्ट करो या तो उसके पे दोबारा से इसको रन कराओ, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एंड कहाँ गया हमारा, लेट्स ट्राई वंस मोर, अदरवाइज फिर इसको रिस्टार्ट करेंगे। तो अगर वहां से ओपन होता पोर्ट तो हमें एग्जैक्टली मिल जाता, बट वहां पे कनेक्शन नहीं है, तो दैट्स व्हाई हमें वहां से नहीं मिला। 1604, जस्ट क्लिक टू लिसन एंड वेट। ओके, नहीं मिल रहा, जस्ट गो टू डाउनलोड एंड या सिस्टम नॉर्मली रिस्टार्ट कर सकते हैं।
अब वापस कनेक्शन आ गया। अब नेटवर्क कनेक्शन में और क्या है हमारे पास, वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स देख सकते हो कौन कौन से, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे चले गए वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स, तो अब इसके बाद वाईफाई का ड्राइवर नहीं है, अदरवाइज आप वाईफाई एक्सेस पॉइंट देख सकते थे। मिसलेनियस फंक्शन में प्रिंट मैनेजर, उसके पे क्या है, आप कुछ भी प्रिंट करो और प्रिंट टेक्स्ट कर दो, तो उसके बाद क्या होगा, अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो नाउ जस्ट गोइंग टू सर्च द प्रिंटर। प्रिंटर है नहीं, दैट्स वाई सेव करने के लिए बोल रहा है, अदरवाइज प्रिंटर होता है डायरेक्टली यहाँ से क्या होता है, एक प्रिंट निकल जाता है उसके प्रिंटर से। क्लिपबोर्ड, दूसरा कंप्यूटर पावर ऑफ कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, लॉग ऑफ कर सकते हो, ठीक है। फिर रीस्टार्ट सॉकेट में क्लाइंट एंड सर्वर कनेक्शन एस्टैब्लिश होने में कोई प्रॉब्लम है तो इसको कर सकते हो। सर्वर एक्शंस में लॉक कर सकते हो कंप्यूटर, रीस्टार्ट सर्वर, क्लोज सर्वर, इंस्टॉल सर्वर, अपलोड एंड एग्जीक्यूट, कुछ अपलोड करके एग्जीक्यूट कराना चाहते हो किसी टाइप का एप्लीकेशन उसके पास है ना, लाइक जैसे कि मैं यहाँ से ये फाइल ले लेता हूँ, ये वाली, और ओपन कर दिया तो ये उसके बाद जाएगी, एग्जीक्यूट होगी और रन कर जाएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एग्जीक्यूट में। फिर रिमोट एडिट सर्वर, टेक नोट्स, कुछ नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना के वहां पे सेव करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वर अपडेट सर्वर फ्रॉम यूआरएल एंड फ्रॉम फाइल, अगर आप यूआरएल से या फाइल से अपलोड करना चाहते हो, कोई अपडेट करना चाहते हो सर्वर को तो वो कर सकते हो। So there are multiple systems, depend करता है कि आप किससे के यूज कर रहे हो। So I'm just going to use a power off system. Just click, yeah, are you sure? Yes, and system is going to power off. Clear हुआ guys? कैसे कर रहे हैं हम? Yes, sir. बढ़िया। So मैं ये फाइल आपको शेयर कर रहा हूँ। You just run this file in your system and देखो चला के किस तरीके से चलता है, and फिर उसके बाद आप इसको यूज करो। स्टेप्स ध्यान रखना, जिस सिस्टम में करोगे सबसे पहले उसका एंटीवायरस ऑफ कर लेना, एंड सेकंड थिंग आप जावा इंस्टॉल कर लेना सिस्टम के अंदर। Okay, sir.